Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन डे। आज के न्यूज़ एनालिसिस में बातचीत होगी इसके साथ साथ चाइना के भारत के साथ जो तेवर बदल रहे हैं, यानी वो चाहता है कि अब भारत के साथ नॉर्मलसी के हवाले से रिलेशनशिप आगे बढ़ें। बहुत अहम डेवलपमेंट। इसके साथ साथ बातचीत होगी यूएस का भारत से ये कहना ख़ास तौर पर कि वो अफ़गान पीस प्रोसेस के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करे। यूएस ने रिसेंटली इंडिया और रशिया से ये अपील की है, इस पर भी आज बातचीत होगी। यहाँ पर कनाडा में भारत की वैक्सीन पहुँच चुकी है, एक खेप और भी कई खेप यहाँ पे आएंगी, और इस सिलसिला में भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ने जो पिछले हफ्ते ट्वीट दिया उस पर भी हम बातचीत करेंगे। कनाडा की नेशनल डेमोक्रेट पार्टी के जो यहाँ पर हेड हैं जनाब जगमीत सिंह साहब, जगमीत सिंह एक ही एजेंडे पे लगता है काम करते हैं, एंटी इंडिया एंटी इंडिया एंटी इंडिया। मुकम्मल तौर पर उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कनाडा की पॉलिटिक्स के साथ। उनके बाहर यानी उनके दफ्तर के बाहर पिछले हफ्ते बहुत सारे लोग जमा हुए और उन्होंने कहा कि जगमीत सिंह इनफ इज़ इनफ। इस पे बातचीत होगी। और जो सबसे चर्चा चल रहा है कुछ दिनों से, प्रिंस हैरी और उनकी बेगम मेगन का इंटरव्यू, वो बिलाखिर संडे को ऑन एयर गया और ओपरा विनफ्री के शो में, और पूरी दुनिया की ख़बरों का वो एक तरह से हेडलाइन बनी, वो वाली ख़बर। ये हैं आज के चर्चे। बातचीत शुरू करेंगे सबसे पहले हम इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप पर। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम चाहते हैं कि इंडिया के साथ हमारे तल्लुकात बेहतर से बेहतर हों। कुछ गलत फहमियाँ पैदा हुई हैं, कुछ टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, वो चलते रहेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि तल्लुकात बहुत बेहतर हों। बहुत ही टोन में तब्दीली आई चाइना की, और इस सिलसिले में मैं चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का वो पूरे का पूरा क्लिप आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि उनकी लैंग्वेज क्या है, उनकी टोन क्या है और किस तरह वो भारत के साथ बेहतरी चाहते हैं। देखिए और सुनिए चीन के फॉरेन मिनिस्टर का क्लिप। The China-India relationship is essentially about how the world's two largest developing countries get along and pursue development and rejuvenation together. As two ancient civilizations next door to each other and two major emerging economies, each with over 1 billion people, China and India have broad common interests and tremendous potential for cooperation. Domestically, both countries face the historic mission of bettering people's lives and accelerating growth. Internationally, the world expects both of us to safeguard the common interest of developing countries and advance multipolarity in the world. On many important issues, our positions are the same or close due to similar national realities. Therefore, China and India are each other's friends and partners, not threats or rivals. The two sides need to help each other succeed instead of undercutting each other. We should intensify cooperation instead of harboring suspicion at each other. The boundary dispute, an issue left from history, is not the whole story of China-India relationship. It's important that the two sides manage the dispute properly and at the same time expand and enhance cooperation to create enabling conditions for the settlement of the issue. The right and wrongs of what happened in the border area last year are clear. So are the stakes involved. It again proves that initiating confrontation will not solve the problem. Returning to peaceful negotiation is the right way forward. China's position is very clear. We are committed to settling the boundary dispute through dialogue and consultation. At the same time, we are resolved
to safeguard our sovereign rights and interests. It falls on both sides to solidify the existing consensus, strengthen dialogue and communication, and improve the various management mechanisms to jointly safeguard peace and tranquility in the border area. In the year ahead, we hope India will work with China to truly deliver on the important common understanding reached by our leaders that the two countries are not threats to each other, but opportunities for each other's development. Together, we can bring greater benefits to the 2.7 billion people in China and India and make greater contributions to the advent of an Asian century. Thank you. आपने गौर किया होगा कि चीन के फॉरेन मिनिस्टर की बिल्कुल लैंग्वेज बदल चुकी है और टोन भी बदल चुकी है। वो ये कहते हैं कि राइट और रॉन्ग जो भी हुआ पिछले दिनों सरहदों पे, अब हमें देखना है उनको भुला के अपनी पार्टनरशिप को दोनों कंट्री को आगे लेकर जाना है। वो कहते हैं कि इंडिया एंड चाइना आर फ्रेंड्स एंड पार्टनर्स नॉट एनिमीज। बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है। लगता है कि वो भारत को टेस्ट कर रहे थे बहुत सारी जगहों पे, लेकिन जब ये देखा कि भारत अब वो भारत नहीं है, बहुत स्ट्रांग है, तो वो पीछे भी हटे और उनकी लैंग्वेज भी चेंज हो रही है। फिर वो कहते हैं कि टू एंशियंट सिविलाइजेशन एंड टू इमर्जिंग इकोनॉमीज। अब वो खुद से एतराफ़ कर रहे हैं, कन्फेस कर रहे हैं कि भारत के साथ चाइना की जो पार्टनरशिप है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है। वो ये कहते हैं कि इंडिया से हम तवक्को रखते हैं कि वो चाइना के साथ मिलकर काम करे, उस रीजन की जो प्रोग्रेस है उस सिलसिला में। बहुत ही डिफरेंट लैंग्वेज है। और लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इस तजर्बे के बाद, इस टेस्ट करने के बाद, जो वो भारत को एक तरह से परेशान करना चाहते थे, नीचा दिखाना चाहते थे, लेकिन नहीं दिखा सके, तो क्या अब वो वाकई ही अपनी वर्डिंग पर, अपने शब्दों पे कायम रहेंगे? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। ये सवाल पहले भी भारत के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए एक तरह से एनालाइज करने के लिए होता था कि चीन जो भी कहता था, क्या वाकई ही चाइना मेंट इट? लगता है कि चीन ने बहुत बड़ा टेस्ट किया है, आजमा के देखा है भारत के मसल्स को, भारत के इरादों को और आज के भारत को, और इसीलिए उनकी लैंग्वेज बिल्कुल चेंज है। दोस्ती की बात कर रहे हैं, बिजनेस की बात कर रहे हैं, एंशिएंट सिविलाइजेशन की कॉमनैलिटीज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सब कुछ चीन इस पर अमल पैरा होगा? मेरा ये ख्याल है कि चीन इस पर बहुत हद तक अमल पैरा होगा, इसलिए कि चीन ने पिछले कुछ सालों में भारत के साथ अपने तमाम जो मसल्स हैं वो आजमा के देख लिए। चाहे डोकलाम का वाक़या हो, इस लद्दाख का वाक़या हो, साउथ चाइना सी का वाक़या हो, हर जगह पे चीन ने आजमा के देख लिया। हत्ता कि पेंडेमिक जो वुहान से फूटा अभी तक पूरी दुनिया को अपने लपेट में लिए हुआ है, और उसका जो एंड गेम है वो भी भारत से आ रहा है। यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन जो है वो भारत में तैयार हुई, दुनिया भर के कंट्रीज़ को वो जा रही है। ब्राज़ील हो, कनाडा हो, नेबरिंग कंट्रीज़ हो, अफ्रीका हो, नेम एनी कंट्री, भारत ही उसका सलूशन दे रहा है। चाइना को अंदाज़ा हो गया कि अब उन्हें अपने अंदाज़ बदलने होंगे, क्योंकि भारत के साथ अब वेस्टर्न वर्ल्ड भी खड़ी है। इसलिए खड़ी है कि उनके अपने इंटरेस्ट हैं, लेकिन भारत का एक पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा से रहा है कि हमारे साथ कोई खड़ा हो या ना हो, हमें अपने इंटरेस्ट के लिए काम करना है। और मोदी जी की दोनों सरकारों में ये अमल वाज़े तौर पर फर्म अंदाज के साथ ना सिर्फ दुनिया ने देखा बल्कि चाइना ने भी देख लिया, और अब चाइना अपनी ज़ुबान तब्दील करने पर मजबूर है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अपने जो वो इक़दामात हैं, यानी जो वो एक्शंस होंगे टूवर्ड्स इंडिया, वो भी अब उनके काफ़ी तब्दील होंगे। ये मैं काफ़ी सर्टन हूँ अपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से।
دیکھتے ہیں آنے والے مہینوں دنوں میں صورتحال کیا ڈیولپ ہوتی ہے۔ دوسری طرف بھارت کی جو اسرٹینٹی ہے، اسی سلسلہ میں یو ایس نے ایک خط لکھتے ہوئے بھارت سے اپیل کی کہ بھارت افغانستان کے پیس مشن میں اپنا کردار ادا کرے۔ ابھی جو جیو پالیٹکس میں تبدیلیاں 2-3 ہفتوں سے آ رہی ہے، پاکستان کی طرف سے سیز فائر پر بیٹھنا، پاکستان کی طرف سے کشمیر کے حوالے سے اپنی لینگویج کو تھوڑا مائلڈ کرنا، یہ لگتا ہے کہ یو ایس کی نئی ایڈمنسٹریشن بہت واضح طور پر پاکستان کو بھی پیغام دے رہی ہے کہ ہمیں پیس پروسیس افغانستان میں بھارت بھی چاہیے۔ چونکہ پاکستان کو اس پہ اعتراض ہوا کرتا تھا، اس لیے لگتا ہے کہ یو ایس نے بھی ان کو میسج دیا ہے کہ آپ کشمیر کے سلسلہ میں بھی اپنے مسائل کو اب سالو کریں، اور یا ایٹ لیسٹ اپنی زبان کو ہی مائلڈ کریں۔ اور یہ میسج مجھے لگتا ہے، جیسا کہ میرے پچھلے شو میں میجر گورو آریہ جی نے کہا تھا، کہ چائنا کی طرف سے یہ میسج بھی پاکستان کو ہے کہ یار اب بس کرو اس سارے کھیل کو۔ ہم نے بھی انڈیا کو آزما کے دیکھ لیا ہے، انڈیا اتنی آسانی سے اب پرانی جو ایک طرح سے ہم ان کو دھوکے دیا کرتے تھے اس میں نہیں آئے گا۔ تو لیٹس چینج آر لینگویج اینڈ آلسو لیٹس چینج آر بیہیویئر اینڈ آر وے آف ڈیلنگ ٹورڈس انڈیا۔ اسی وجہ سے اب انڈیا کا افغانستان میں بھی رول بڑھے گا، پاکستان بھی شاید اس سلسلے میں اب اتنا شور نہیں مچائے گا۔ جیو پالیٹکس میں اس ریجن میں بہت بڑی تبدیلیاں آنے والے دنوں میں آ رہی ہیں۔ آپ یہاں اسکرین پہ ایک پکچر دیکھیں گے جس میں افغانستان کے پریزیڈنٹ بھارت کی فوج کی پریڈ میں شامل ہیں۔ یہ ایک پرانی پکچر ہے۔ یہی صورتحال اب واپس آ رہی ہے۔ بھارت کی افغانستان میں بلینز اینڈ بلینز ڈالر کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ واقعی ہی اس ملک کی کنسٹرکشن کے لیے ڈیولپمنٹ ہے۔ بھارت نے بغیر کسی نفع نقصان کے وہاں پر لوگوں کو مدد کرنے کے لیے یہ انویسٹمنٹ کی، وہاں پہ انفراسٹرکچر بنائے، وہاں پہ بسیں فراہم کی، ہاسپٹلز بنائے، بہت کام بھارت کی طرف سے افغانستان میں ہوا ہے۔ یہ کام پاکستان میں بھی بھارت کی طرف سے میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہو سکتا ہے، اگر پاکستان اپنی جو پراکسی ٹیررزم اور جو بھارت کو ستانے کی پالیسیاں ہیں وہ یکسر ختم کر دے۔ یہ میں بہت یقین سے کہہ سکتا ہوں، یہ ممکن ہے، یہ نہ صرف ممکن ہے، یہ ایسا ہو سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں آنے والے وقتوں میں پاکستان اپنی پالیسیاں حقیقی سطح پر کیسے تبدیل کرتا ہے اور بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کو صحیح معنوں میں کیسے استوار کرتا ہے۔ اس کا فائدہ پاکستان کی غریب عوام کو اور پاکستان کی ریاست کو بھی ہوگا، لیکن اس کے لیے شرط بڑی واضح ہے جو پرائم منسٹر نریندر مودی بھی کہتے ہیں کہ اب گولی بارود کی فضا میں کسی قسم کی دوستی کی بات نہیں ہوگی۔ اور دنیا کے کمنٹیٹرز بھی اس بات پر متفق ہیں کہ ایسا ممکن نہیں کہ ایک طرف سے گولی بارود کی فضا ہو اور دوسری طرف دوستی کی بات کی جائے۔ ایسا ممکن نہیں ہوتا دنیا میں کہیں پر بھی۔ آگے بڑھتے ہوئے جو سب سے اہم خبر دنیا کے میڈیا کے لیے بظاہر چلی وہ اس سنڈے کو یعنی کل پرنس ہیری اور میگن کا جو انٹرویو تھا اس سلسلہ میں آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اوپرا ونفری ان کا انٹرویو کر رہی ہیں اور یہ انٹرویو ملینز اینڈ ملینز لوگوں نے دیکھا۔ اس میں بہت ساری باتیں کی۔ پرنس ہیری اور میگن یہ جو جوڑا ہے یہ اب شاہی جو پریویلیجز ہیں ان سے باہر نکل چکا ہے اور یہ اب امریکہ میں موو ہو چکے ہیں جہاں سے میگن کا تعلق ہے۔ اور اس انٹرویو میں ریسزم کی بات بھی سامنے ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ جو برطانیہ کا شاہی نظام ہے وہ کتنا کڑا اور کتنا پرانا ہے اور اس کو ہلانا کتنا مشکل ہے۔ میگن نے کہا کہ ایک ایسا موقع بھی آیا کہ ان کو محسوس ہوا کہ وہ خودکشی کرنے جا رہی ہیں کیونکہ ان کو کسی قسم کی ہیلپ نہیں تھی۔ جب ان کے بچے کی پیدائش ہوئی تو شاہی خاندان میں یہ بھی چہمگوئیاں تھیں کہ اب اس بچے کا سکن کلر کیا ہوگا، کیونکہ میگن
अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी से बिलोंग रखती हैं और वो प्रिंस हैरी की बेगम हैं। तो यहाँ तक खदशा था शाही ख़ानदान को कि उनकी अगली नस्ल का स्किन कलर क्या होगा। बहुत सारी बातें इस इंटरव्यू में हैं। आप सब इस इंटरव्यू को सोशल मीडिया पे इसके क्लिप्स अब वायरल हो रहे हैं और यूट्यूब पर भी जितना अवेलेबल है देख सकते हैं। इसकी बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन ये इंटरव्यू इस बात की एक तरह से वाज़ेह तौर पर तर्जमानी करता है कि जो पुरानी कदरें हैं रॉयल फैमिलीज़ की, पर्टिकुलरली इन इंग्लैंड, वो शैटर हो रही हैं। इस इंटरव्यू में प्रिंस हैरी की मां का भी जिक्र आया। इस इंटरव्यू में प्रिंस हैरी ने अपने बाप के बारे में भी गिला किया। उन्होंने कहा कि मेरा बाप भी इसी तरह के मसाइल से गुज़रा था जिस तरह के मसाइल से मैं गुज़र रहा हूँ, लेकिन अब वो शाही ख़ानदान की जो फरसूदा रवायात हैं उनके साथ है। हम उन रवायात से बाहर निकल रहे हैं और अब उनके पास वो रॉयल प्रिविलेजेस भी नहीं रही। लेकिन इस इंटरव्यू में मेगन ने मलका एलिज़ाबेथ का शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि मलका जो हैं वो बहरहाल बड़ी एक काइंड औरत हैं, उनसे उनको कोई गिला नहीं। बहुत ही अहम इंटरव्यू है। लगता है कि आने वाले दिनों में इस इंटरव्यू पर मज़ीद बातचीत इंटरनेशनल मीडिया करता रहेगा और ये बातचीत होती रहेगी। अब हम बातचीत को आगे लेकर जाते हुए उस मोड़ की तरफ आते हैं कि यहाँ पर कनाडा में जो भारत से कोरोना पेंडेमिक के ख़िलाफ़ वैक्सीन जो पहुँची है उसका एक ट्वीट किया पिछले हफ्ते भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ने। उन्होंने कहा कि रीचिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, मेक इन इंडिया वैक्सीन अराइव इन कनाडा। एक तरफ भारत के यहाँ पर जो हाई कमिश्नर अजय बिसारिया जी खड़े हैं और दूसरी तरफ जो कनाडा की मिनिस्टर हैं मिस अनीता आनंद, वो इस वैक्सीन को रिसीव कर रही हैं। मिस अनीता आनंद भी भारतीय निजात की कैनेडियन मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ प्रोक्योरमेंट इन लिबरल गवर्नमेंट। बहरहाल ये एक अहम खबर है। भारत की तरफ से कनाडा को वैक्सीन पहुंच चुकी है और मज़ीद भी खेप आ रही है और इस सिलसिले में बहुत अहम खबरें और भी जन्म ले रही हैं। आने वाले दिनों में हम वो खबरें भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि कनाडा की तीसरी पॉलिटिकल पार्टी एनडीपी के लीडर जगमीत सिंह मुकम्मल तौर पर भारत के ख़िलाफ़ अपना प्रोपेगेंडा सुबह शाम करते रहते हैं। ह्यूमन राइट्स का उन्हें एक ही मसला दुनिया में नज़र आता है, भारत भारत भारत। उन्हें कहीं और ह्यूमन राइट्स की बात नज़र नहीं आती। वीगर मुस्लिम्स के बारे में उन्होंने कभी आज तक ट्वीट नहीं दी, मुझे याद नहीं पड़ता। पाकिस्तान में सिखों और हिंदू बच्चियों के साथ जो सलूक होता है उसके बारे में कभी उन्होंने ट्वीट नहीं की। साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में जो इंसानियत पर जुल्म हो रहा है, जगमीत सिंह को वहाँ पे कोई ह्यूमन राइट्स का इशू नज़र नहीं आता। वो यहाँ पर भारत 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 और हिंदुओं को ख़ास तौर पर वो बहुत ही डेरोगेटरी अंदाज के साथ टारगेट बनाते रहते हैं। इसी सिलसिला में उनकी राइडिंग यानी ब्रिटिश कोलंबिया में जो उसकी राइडिंग, उसके बाहर अब लोग इकट्ठे होते हैं ऑन एंड ऑफ और वहाँ पे जाके वो अपनी जो प्रोटेस्ट है वो भी रिकॉर्ड करवाते हैं। इसी तरह का एक वीडियो क्लिप हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जिसमें उनकी राइडिंग की एक वाइट कॉकेशियन कैनेडियन जो हैं वोटर, वो दुख के साथ कहती हैं कि मिस्टर जगमीत सिंह आप एंटी हिंदू हद से ज़्यादा होते चले जा रहे हैं। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। सुनिए उस खातून का ये मुख्तसर वीडियो क्लिप। Hello, my name is Rebecca Nagar. I voted NDP in the last federal election. It's really concerning that Jagmeet Singh, who advocates himself of being a promoter of human rights and minority rights, is doing nothing, saying nothing regarding the hate and violence towards the Hindu communities in Canada, and especially the Vancouver area, as well as Burnaby, who we are now citizens of Burnaby. So I'd like Jagmeet Singh to also denounce his hate towards Hindus and to act accordingly as per an MP, Member of Parliament, and leader of the NDP.
जगमीत सिंह की राइडिंग से उनकी वोटर ने एक बहुत ही खुला मैसेज दिया। हमारे पास और भी बहुत सारे वीडियो क्लिप्स हैं, आने वाले दिनों में हम वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अब मिस्टर जगमीत सिंह को सोचना है कि क्या उनका जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो कनाडा की एक नेशनल पार्टी के वो पॉलिटिकल लीडर हैं, मगर उनका सारा जोर पर्सनल वेंडेटा की बेस पर एंटी इंडिया है, विच इज़ बैड फॉर कैनेडियन पॉलिटिक्स, विच इज़ बैड फॉर हिज own style of politics. It must be abolished. This kind of attitude should not be acceptable in Canada anymore. लेकिन देखेंगे कि मिस्टर जगमीत सिंह इस सिलसिले में कैसे अपने आप को बदलते हैं। यहाँ ब्रैम्पटन में एक हफ्ता पहले जो भारतीयों की एक बड़ी पीसफुल रैली हुई थी, उस पर जो अटैक हुआ था, वायलेंस हुआ था, उस वायलेंस के सिलसिले में भी बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है। एक दो लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। उस डेवलपमेंट में एक और अहम नुक्ता भी है कि मिस्टर जगमीत सिंह के एक रिलेटिव को एलिजिडली कहा जा रहा है कि वो भी उस वायलेंस में शरीक थे। जैसे ही ये खबरें भी कंफर्म सामने आएंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। शुरू में मैंने कहा था हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन डे, और आज का जो न्यूज़ एनालिसिस है वो आखिर में मैं हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन डे पर ही ख़त्म करूंगा। और भारत में एक बहुत बड़ी तकरीब हुई, पाकिस्तान में भी एक रैली हुई विमेन राइट्स के सिलसिले में। भारत में जो तकरीब हुई उसमें भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ने शिरकत की। मैं चाहूँगा कि उस वीडियो क्लिप को आप देखें। MEA, India and the world have come a long way in the last few decades where the role of women diplomats is concerned. As you heard from Gloria just now, we, I believe, have 209 women officers constituting a quarter of the Indian Foreign Service. 22 of them are our High Commissioners and Ambassadors who keep the Indian flag flying high in different corners of the world. Freedom to get married was an issue. More, I would say, insidious forms of gender discrimination were also prevalent to varying degrees. But over a period of time, we saw change unfold to a point where I can honestly say today that we are both a fair and sensitive ministry and foreign service. And I salute those who led that way through achievement as much as by example. भारत के फॉरेन मिनिस्टर इंटरनेशनल वुमेन डे पर अपना मैसेज देते हुए भारत की जो वुमेन का रोल है माशरे में भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी, उस पर भी बातचीत कर रहे हैं, और फर्दर जो डेवलपमेंट होंगी उस पर भी बातचीत कर रहे हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है, और हमारे पर्टिकुलरली साउथ एशिया के कल्चर में बदकिस्मती से ये समझा जाता है कि औरत जो है वो माँ, बहन, बेटी और बीवी की हैसियत में तो उसको इज़्ज़त देनी चाहिए, मगर उसको औरत और एज एन इंडिविजुअल की हैसियत से अभी तक वो मुकाम नहीं मिला इक्वल मर्दों के मुकाबले में जो मिलना चाहिए। इसके लिए स्ट्रगल जारी रहनी चाहिए उन माशरों में, और उनके जो पॉलिटिशियंस हैं, इंटेलिजेंसिया है, और उसके साथ साथ जो राइटर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनको तब तक नहीं बैठना चाहिए जब तक वहाँ ख़ास तौर पर औरत को एज वुमेन एंड एज इंडिविजुअल इक्वल रिस्पेक्ट ना मिले। इसी सिलसिले में पाकिस्तान में भी एक रैली हुई, और हमारे पाकिस्तान के टैग टीवी के स्टूडियो ने उस रैली को कवर किया। हम चाहेंगे कि उसका वीडियो क्लिप भी यहाँ पर देखें। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी ख़वातीन का आलमी दिन मनाया गया। यौम ख़वातीन के हवाले से मुल्क भर में मज़ाकरे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और रैलियाँ निकाली गईं। वकार हुसैन, टैग टीवी, पाकिस्तान। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी ख़वातीन का आलमी दिन मनाया गया। यौम ख़वातीन के हवाले से मुल्क भर में मुज़ाकरे, प्रेस कॉन्फ्रेंस, रैलियाँ निकाली गईं। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर अपने पैगाम में सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और सियासी और समाजी रहनुमाओं ने ख़वातीन को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि ख़वातीन ने मुख्तलिफ शोबों में खिदमत सर अंजाम देकर खुद को मनवाया। ख़वातीन बेपनाह एहतराम की मुस्तहिक हैं।
ریلیوں میں شرکا نے اپنے ہاتھوں میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے۔ مقررین نے خواتین کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے عورتوں کے حقوق پر زور دیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ حکومت جہیز کی لعنت کو دفنانے کے لیے سرکاری طور پر انتظامات کرے۔ صرف 6 ماہ میں کراچی میں 14,000 طلاق و خلا کے کیسز ریکارڈ ہوئے، جو انتہائی افسوسناک اور لمحہ فکریہ ہیں۔ پاکستان میں ویمن رائٹ کے لیے جو یہ ریلی ہوئی وہ جماعت اسلامی پاکستان کی طرف سے تھی۔ اور بھی ریلیز ہوں گے مگر ان کی ابھی تک رپورٹنگ ہم تک نہیں پہنچی۔ یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ پاکستان میں اسلامی اقدار جو ہیں وہ کافی جڑوں تک ہیں، اور اگر جماعت اسلامی بھی اس طرح کے پیغام کو لے کر سامنے آئے تو وہ بھی اہم ہے۔ اگرچہ ذاتی طور پر مجھے جماعت اسلامی کی بہت ساری پالیسیوں سے میں اتفاق نہیں کرتا، لیکن یہ بات اچھی ہے کہ جماعت اسلامی کی خواتین بھی کہہ رہی ہیں کہ اسٹرانگ ویمن میک اسٹرانگ فیملی۔ انہوں نے بھی یہ بینر اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ ایک اچھی بات ہے، چونکہ معاشرہ اپنے تمام جو افراد ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی آئیڈیالوجی سے تعلق رکھتے ہوں، وہ سب کے سب جب تک معاشرے میں تبدیلی نہیں چاہیں گے تب تک معاشرہ پروگریس نہیں کرتا۔ آج کا نیوز بلیٹن طاہر گورا کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ۔ ہمارے ویب سائٹ techtvsouthAsia.com پہ جائیے اور ڈونیٹ کا وہاں پر بٹن ہے، آپ اس کو کلک کیجئے۔ آپ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے یا پے پال کے ذریعے یا پیٹریون کے ذریعے ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.